for tube wells, which is too inadequate. It is good to develop gardens, but at the same time, these gardens become a menace at night when there are no lights. So one of the issues which we are saying is that all these gardens must have proper and adequate lights which should work. Cleanliness has been virtually a casualty. Although the man says that he has been working day and night, and every politician comes and says, not that there is no cleanliness here, but at the same time, they are much below any standards. Because every day you don't get the sweepers coming, and this kind of an attitude must change. Then public-private participation scheme in horticulture. We just got some money for 3 months, and then the government has huge funds to provide it for the maintenance of parks. Those funds must come more frequently and regularly. One of the nuisance which the colony faces is that each time the roads are laid or made, or you might do it at your cost or at the cost, the next day you find somebody, some authority comes and cuts the road. Those cut roads are for either telephone lines or for some cable connections or something else, but they are never filled back. So therefore, another suggestion we are saying is, the moment you cut the road, they should be repaired within 3 days or 4 days. Otherwise, it becomes a nuisance if they remain for 6 months like this. One on the Ring Road Nala, one on the Firoz Gandhi Road Nala, to make those model toilets, which should be for people to go and use them. So public urinals is another recommendation which we are raising with him. Getting it. Many colonies and developed areas have those Indraprastha gas connections. We had taken up last year the issue with the Indraprastha Gas Authority. They were willing, and when we chased them up, they said, yes, we are still willing. Everything is there till the ring road. Now, what they are asking is the road cutting permission, which is not being granted by the corporation. That is another issue. Once we get that gas connection, it will be one cheaper, it will be two regular, it will be three. We are not dependent on these booking and LPG black marketing. The one concern which everybody has unanimously felt, that although we are all making our parks ornamental parks, good parks for the residents, but there is no place for children to play. So what we have suggested is that from this Gurdwara onwards till the end, the park should be specifically meant for children, and swings, badminton court and whatever facilities can be provided should be there. We also find that unauthorized parking in this area. And Ring Road, every third man comes with a parchi and says, here you pay me money. This should not be allowed at any cost, and we must see to it that there is a proper parking, and the request has been going to all residents time and again. Please use stickers on your car so that we can even man the gates. Unfortunately, we have become the residents of a top area which I have been seeing. We serve 2 to 3 lavish dinners, tea parties, and I can tell you, there is not a single individual who can come and say from the Lajpat Nagar tree that I contributed a penny. But if you can stay in Son Vihar and pay 2,000 rupees, or if you stay in a government, any cooperative society, you pay 500 to 1,000 rupees for maintenance. But unfortunately, we have failed in this area. These are some of the issues which we are going to take up. Your suggestions, if there are any, please give it. We'll incorporate them if there's anything left out. And all those suggestions, if you have printed, we'll present it to the Commissioner in your presence. Not being maintained for the last 2 years. Lights are not maintained. Maintenance is lights are not working. सवाल ही नहीं पैदा होता एट नो कॉस्ट अगर पार्किंग बनती होती है ना जगमोह से बुला लेते हैं नहीं एनीबॉडी मैडम आइए सुन साहब हर पार्किंग है
रोज गांधी रोड पे नहीं या ना, अभी तो नगर में बोलो आप सही। देखेंगे जो नहीं, बोल दिया ना कि के भाई ये माफियाज सारी- हैं उन्होंने जानबूझ के जो येलो लाइन है ना वो डबल लाइन बना रखी है। I know. The three towers. डबल लाइन At times, I am. एक गाड़ी पार्क होती है Connected as yet. Yes. Locked on the road. Yes. Stagnant water. I know. unauthorized shops हैं। I know. It's been dug below after the discharge of unauthorized Mr. Malwai. Friends, it's a matter of great pleasure for us to be one commissioner of Delhi, MCD. The entire corporation, whenever Mr. Mandal comes here, we are at him. ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. And Mr. Mandal, who is too well known to all of us, keeps visiting, saying, when he goes to Lajpat Nagar, Amar Colony, they say कि तुम लाजपत नगर 3 में ज्यादा ध्यान देते हो. जब वो यहाँ लाजपत नगर 3 में आते हैं तो हमारा RTI एक्सपर्ट सेक्रेटरी कहता है आपने यहाँ तो पैसा कुछ खर्च ही नहीं किया. जब वो गढ़ी में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो वैसे के वैसे स्लम में रह रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है. मंडल साहब has been working day and night for improving the situation, but the expectations are very high. And I was giving this illustration of society is on MCD commissioner. If the civic life has to improve, the things have changed in Delhi enormously. And all credit goes to the executive wing and the commissioner who has to listen not only to our problems but to everybody. Let me say, Mr. K.S. Mehra is a young dynamic IAS officer of 1978 batch. Absolutely a workaholic. A man, when he came to Delhi as a commissioner, there was a fear in the corporation circles that he is a dangerous man. He means business. He takes quick action. It is better to be feared than loved. And his mantra is to visit the entire Delhi and see for himself what is happening. Sir, we are very grateful to you for having come. Mr. Dhawan would welcome him. But let me add just a footnote that Mr. Mehra has been in Arunachal Pradesh, in Andaman, Nicobar, Lakshadweep. He had been the additional commissioner with the MCD, health, education. If you ask me, he is familiar with every inch of the problem. If the Commonwealth came to have a partly success or internationally a success, the man behind it is certainly Mr. Mehra. I'm sure you understand it. Nothing to do with the money part of it, but execution and beautifying, it was his job. I would request the President of the RWA to make a floral presentation and welcome Shri K.S. Mehra. Very good fortune that we also have with us the Deputy Commissioner, Mr. Vikas. The man who is directly approachable and accessible for all your anger is Mr. Vikas. Provided he is available.
He is always available in his office. The only thing is we must know how to reach him, how to approach him, and we are very grateful that Mr. Vikas is amidst us. Then we have the Works Committee Chairman, Mr. Jagdish here. The complaints which I was reading out to you, which the Secretary would present, would be with his. Then we have Mr. Our dear corporator. We have the privilege, in fact, we have two corporators in this area, one as a resident and the other as the man who looks after all our problems, Mr. Mandal. Mr. Mandal, I am very straightforward. You do a lot of work, but our expectations are far greater. And nobody knows better than the Commissioner himself that Delhi has a migrant problem. Delhi has so many people coming in. The expectations, and particularly we are in a quote-unquote South Delhi, which is supposed to be one of the best areas. So therefore our expectations are also very high. The limitations, constraints, he will himself explain, but the other part, I would request the Secretary to welcome flowers. Harvinder Singh is the Secretary who is the backbone and the live wire of the entire association. He is the man who does everybody on tender hooks. Anybody has any complaint, we ring up Harvinder Singh, please do this. We have Mr. Umesh amidst us. Mr. Dhawan will welcome Mr. Umesh. He is the Chief Engineer of MCD. I think all those who matter to solve our problems are here. Sir, I have all these representations. You want our executive to welcome him? Please come. Mrs. Usha Chhabla, Mr. Yogesh Bathani, the Finance Minister and the Treasurer. That's why I said Mr. Mehra is a man of ground reality. So immediately came. इधर से सामने Mr. C.S. Malhotra, माधव साहब और साथ में ये वेट करेंगे आप Rakesh Das, Sanjay, Amit Bhatia, Shri Vikram ji, सामने देखिए सर साथ हो जाइए आंटी थोड़ा Mr. H.G. Suri, Mr. Suri Saab is the former president of the senior us advice. Now, I would request Mr. G.K. Dhawan to propose a formal welcome to Shri Mehra. डीसी साहब को मैं लाजपत नगर नेबरहुड एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं मेहरा साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। आज उन्होंने हमारे बीच आए लाजपत नगर थर्ड में प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, वैसे विजिट करने के लिए ही वन ऑफ द डायनेमिक IAS ऑफिसर डॉक्टर सेठी ने उनके बारे में सारा बता दिया। मेहरा साहब के पास टाइम नहीं है। सेक्रेटरी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने एक लाजपत नगर थर्ड की तरफ से एक चार्टर डिमांड बनाई है, वो चार्टर डिमांड को हरविंदर जी तुरंत ही मेहरा साहब को देंगे और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। मैं मेहरा साहब का तहे दिल से अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स की तरफ से और एंटायर लाजपत नगर थर्ड एसोसिएशन की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ और मंडल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बीच ना सच डायनेमिक कमिश्नर्स को जो दिल्ली को इम्प्रूव कर रहे हैं उनको लेके आए। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये कि भी हरविंदर जी ने सारी चार्टर डिमांड तैयार करी है, उनको अच्छी तरीके से सुने। मेहरा साहब को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, मेहरा साहब उस पर एक्शन लेंगे। इंस्टेड ऑफ मेहरा साहब के पास टाइम नहीं है इंडिविजुअल उनको देने का, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी डिमांड्स आपकी हमने मिला करके सब मेहरा साहब को प्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच। किचन में एक बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज हमारे कमिश्नर हमारी एसोसिएशन में आए, मुझे आने वाले टाइम हमेशा याद रहेगा।
अगर मैं कहूँ हमारा इस एसोसिएशन का और एमसीडी का एक बहुत पुराना रिश्ता है। ये एसोसिएशन 1958 में फॉर्म हुई, एमसीडी भी 1958 में फॉर्म हुई। बहुत कम लोगों को पता ही है कि ये एसोसिएशन बनी क्यों। इसका भी कारण एमसीडी ही थी, क्योंकि ये बेसिकली रिहेबिलिटेशन कॉलोनी थी, रेफ्यूजी के लिए बनाई गई थी। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया था इसको। जो पार्ट 3 था, ये ऑप्शन किए गए थे प्लॉट, और जब ये मिनिस्ट्री रिहेबिलिटेशन ने इसको डेवलप किया 1958 में जब एमसीडी बनी, तो हमारे कोई काम एमसीडी करती नहीं थी कभी, क्योंकि उनको हैंडओवर की नहीं गई थी। हमें बहुत परेशानी थी। हमारे कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि क्यों ना एक एसोसिएशन फॉर्म करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। तो हमने एमसीडी के कारण ही ये एसोसिएशन फॉर्म की थी 1958 में। फिर स्ट्रगल करके ये पूरा लाइफ अगर 1 से लेके 4 तक इसको कारपोरेटर को हैंड ओवर कराया। तो हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। और हमारी जो वर्किंग है, मैं कमिश्नर साहब को बताना चाहूँगा, तकरीबन 10 साल पहले हमने कॉलोनी में 16 गेट लगाए बिना किसी रेजिडेंट से 1 रुपया दिए हुए, जो उस टाइम की हमारी कीमत तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा था। हम डे टू डे सब लोगों की कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। यहाँ से सुबह हमारे ऑफिस सेक्रेटरी यहाँ बैठते हैं, और इवन हमारे टेलीफोन नंबर पूरी कॉलोनी के अंदर एक घर में सबके पास है। उनकी प्रॉब्लम को हम परस्यू करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं। और ये नहीं कि खाली सिर्फ अपनी हेल्प करते हैं, आपके डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ काम करने आते हैं उनकी भी हेल्प करते हैं, ताकि उनका काम जल्दी जल्दी हो जाए। इसके अलावा हमारी एक SMS सर्विस है, घर घर में हम इंफॉर्मेशन डे टू डे पहुँचाते हैं, और एक हमारी वेबसाइट भी है। एमसीडी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल अलग अलग तरह के हैं, पर हमें सब एंगल से देखना चाहिए इसको। सबसे पहले मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी कॉलोनी का नाला, जो एक हमारे ही अभिशाप था, 4 करोड़ सिर्फ हमारी कॉलोनी के अंदर ही लगा के उसको कवर किया, उसके ऊपर ब्यूटीफुल पार्क बन रहा है। उसके बाद 2 करोड़ रुपए का एक ड्रेनेज सिस्टम पूरा डेवलप किया इन्होंने, जो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट है। वो भी इनके प्रोजेक्ट डिवीजन से सारा पैसा लगा और ये कंप्लीट हुआ। अब अगर मैं कहूँ कि एमसीडी ने कुछ नहीं किया, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और अगर मैं कहूँ तो एमसीडी ने हमारी सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो ये भी सच्चाई नहीं है। मैं 12 नवंबर 2010 में मेहरा साहब के ऑफिस गया था एक मीटिंग में। मेरे साथ हमारे MLA नीरज बसोया जी थे। वहाँ पे मैं 3 पॉइंट इनके सामने रेज किए थे। इनका पूरा स्टाफ वहाँ था, DC थे उस टाइम के थे, और इंजीनियरिंग भी था वहाँ पे सारा। मैंने एक बात कही कि हमें लोग कहते हैं कि बड़ी पाँच कॉलोनी है, हमें नजर नहीं आता वैसे ऐसे, पर हमें कहते हैं बड़ी पाँच कॉलोनी है। और आई ब्लॉक के कोने पे पिछले कई साल से एमसीडी की लेबर की ड्यूटी डली है आज तक, वो आज तक नहीं हटी। मैंने उस मीटिंग में इनको बताया, नेक्स्ट डे सुबह वो ड्यूटी हट गई। वो हटी इसी तरह जैसे कोई मैच फिक्स होता है कि भाई मैं कॉल करूंगा तो तू आउट हो जाइयो। वो जो इंजीनियर था उसने ड्यूटी हटाई और अपने मोबाइल फोन से फोटो खींच ली। फोटो खींच के चला गया, उसका काम पूरा हो गया। उसके जाने के बाद वो ड्यूटी दोबारा फिर डल गई। 18 नवंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया कि भाई साहब ये फिर डल गई हैं। अब हुआ ये, एक्चुअल वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो पुलिस कॉलोनी के बाद जुड़ गई है। पुलिस कॉलोनी के अंदर कोई आदमी है रिटायर्ड बंदा, वो उसको शेल्टर देता है। उसने मेरे को फोन किया, जी मुझे वो इंजीनियर कहते हैं कि आप सेक्रेटरी साहब से अप्रोच करो और इसको रुकवाओ। मैंने कहा मैं क्यों अप्रोच करूँ, मैं तो कह रहा हूँ हटाने के लिए इसको, आप कह रहे हैं इसको रोक दो। नहीं आप, वो हमारे जो एमसीडी के ऑफिसर्स हैं वो हमारे गाँव के हैं,
तो आप इसको अमेरिकन काम करोगे तो आप एक जगह अलॉट करवा लीजिए, वहाँ भी सबको लीजिए, हमें क्या एतराज़ है। तो वो चूँकि आज तक नहीं हटे, 12 नंबर तो मैं ले ली थी, ठीक हो जाएंगे, वो आज तक अभी तक ठीक नहीं हुई। एक ट्रैफिक प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा है, और इतना बड़ा मास्टर प्लान का वायलेशन है। जब ये कॉलोनी टाउन प्लानर ने डेवलप की थी, उसने रोड डिफाइन की थी, और मास्टर प्लान में रोड्स की डेफिनेशन भी उन्होंने बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या है। रिंग रोड और लाला लाजपत राय मार्ग, इसको मास्टर प्लान कहता है कि ये आपकी आर्टीरियल रोड है, और फिरोज गांधी रोड, वीर सावरकर मार्ग और शिव मंदिर मार्ग, ये 3 रोड को कहते हैं मास्टर प्लान कि ये आपकी कलेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्रेटरी कलेक्टर्स हैं, जो आपकी स्ट्रीट में से ट्रैफिक लेंगी और आर्टीरियल रोड को मिलाएंगे। बाकी सारी रोड्स हमारी स्ट्रीट्स हैं, हमारे रेजिडेंट बच्चों के चलने के लिए, हमारे यूज करने के लिए। अब बच्चों को चलने की जगह नहीं है सड़कों के ऊपर, और उसके ऊपर नॉइज पोल्यूशन, उसके ऊपर एयर पोल्यूशन कितना है वो हम रोज खाते हैं सारा दिन, और हमारी सेहत क्या होगी ये आप इसी अंदाजा लगा सकते हैं। इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला है। सफाई के बारे में हमारी बहुत शिकायत है, और हमारे यहाँ भी अभी वेद प्रकाश जी हैं जो ट्रैफिक के सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। इनसे मैंने एक बार रिक्वेस्ट की, ये था 13 जनवरी 2009 को इन्होंने हमारे यहाँ रेड की। 40 एम्प्लॉई सिर्फ हमारे कॉलोनी के अंदर, हमारे लिए सिर्फ 4 एम्प्लॉई थे सिर्फ काम करने वाले, वेद प्रकाश जी को पता है। उन्होंने उस सुपरिटेंडेंट को, जो सुपरवाइजर को ट्रांसफर कर दिया, थोड़े टाइम ठीक रहा, फिर वैसा का वैसा ही है। उसके बाद हमारी जो पास की लाइट है, और हमारी मजे की बात है कि हमारी लाइट की जो एक एंट्री है उस पर कई साल लाइट नहीं थी। दिवाली को दमन साहब ने मुझे बोला यार एक लाइट का कोई इंतजाम करो, लाइट नहीं मिली मेरे को। दमन साहब से मैंने 6,000 रुपये आप दो, और केबल मंगाता हूँ, लाइट मैं लगाता हूँ। 6,000 रुपये दमन साहब ने दिया, पोल मैंने अरेंज किया, तो लाइट यहाँ से उठा रही अपने कमेंट सेंटर से, वो लगाई, वो आज वहाँ पे लाइट है। लाइटों का बुरा हाल है, कोई सुनने वाला नहीं। पैसे लगाते हैं उसके, सिर्फ 4 पंप हैं, और 4 पंप को जो लोग मैनेज करते हैं वो किसी फोन पे नहीं सुनते किसी की बात, किसी की। जब तक पूरी कॉलोनी वाले उनको SMS दे के गेट वेल फोन का मैसेज ना भेजें और अखबारों में ना आए, तब तक वो कोई भी काम ठीक नहीं करते, ये सबको पता है, ठीक है। तो वही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब ये नाले के ऊपर एक पार्क डेवलप हो गया, एरिया बढ़ गया पार्क का, कम से कम 2 ट्यूबवेल और लगने चाहिए, 6 ट्यूबवेल लगे, ताकि ये हम खुद मेंटेन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करें। उसके बाद सड़कें हमारी बुरा हाल है, जगह जगह टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ड्रेनेज जो अभी आपने डेवलप की है, बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, उसका फायदा तभी है जब ब्लॉक से आप कनेक्ट करेंगे। अगर आपने ब्लॉक से कनेक्ट ना की तो उसका कोई फायदा नहीं है। जगह जगह L ब्लॉक में, D ब्लॉक में जगह जगह पानी रुकता है उसके बीच में, उसका कोई। उसके बाद फिरोज गांधी रोड पे और रिंग रोड पे हम 2 पब्लिक यूटिलिटी चाहते हैं। हमारा ये पार्क है, नाला, इसके तो आते आते लोग सारा दिन पेशाब करते रहते हैं। हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, बहनों को बड़ी दिक्कत होती है देखने में। तो अगर 2 आप यूटिलिटी बना दें फिरोज गांधी रोड पे, और मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ आपको, खुशखबरी है कि कमिश्नर साहब ने ये 2 टॉयलेट ऑलरेडी अभी अनाउंस कर दिए, सेंक्शन कर दिए। अब एक और प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी है, रोड कटिंग की। पिछले कई सालों से जितनी रोड कटिंग है वो आज तक कभी रिपेयर नहीं हुई। B ब्लॉक की बैकलेन है, C ब्लॉक में, F ब्लॉक में, L ब्लॉक में, G ब्लॉक में, ये डिपार्टमेंट रोड कटिंग करके चले जाते हैं, अपना काम करके चले, वो पैसे इसको जमा करा के जाते हैं MCD को, पर वो पैसा यहाँ पे लगता नहीं है। PD वाले करते हैं, इनके वर्क अवार्ड होते हैं, उसकी एक कापी हमें जरूर दी जाए, हमें पता रहे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है। और
हमारे बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं पूरी कॉलोनी के अंदर, सारे पार्क मेंटेन खिड़कियों में ऑर्नामेंटल हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये नाला जो कवर हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, गुरुद्वारे से लेके फिरोज गांधी रोड तक जो पूरा एक बेल्ट है, इसको प्ले ग्राउंड के रूप में डेवलप किया जाए ताकि वो बच्चे आने वाली हमारी नस्ल जो है उसके काम आ सके। अब इतनी सारी बातें एमसीडी के बारे में कही गई, अब मंडल साहब के बारे में ना कुछ तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। मंडल साहब जो जो काम कहते हैं तकरीबन करते हैं, पर एक शिकायत सुनिए आप सुनिए, मैंने वो पॉइंट एक किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो टैक्स हम लोग देते हैं एमसीडी को और वो उम्मीद करते हैं कि हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। लाजपत नगर थर्ड देखें तो वार्ड नंबर 160 का 1/3 पोर्शन लाजपत नगर थर्ड है। तो हमारी एक उम्मीद है कि अगर आपको कोई पैसा फंड मिला तो 1/3 हमारे ऊपर लगना चाहिए, नहीं तो जिसको 5 करोड़ कहते हो कुछ टाइम बाद ये गड़ी पोजीशन ये हो जाएगी और गड़ी जो है वो लाजपत थर्ड बन जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है मंडल साहब से भी, अभी 1 साल और है आपका, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले हमेशा आप ही रहे यहाँ पे, पर जो इस टेन्योर का 1 साल रहता है आपका, उसमें आपको जो 2-2.5-3 करोड़ जितना मिलेगा उसमें से कम 50% जो हम आपसे चाहेंगे, नहीं तो हमारा आपसे झगड़ा हो जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इन्हीं बातों के साथ मैं जमन साहब को कहता हूँ कि वो अपने विचार रखें। And the scorching heat will continue to trouble you now. Let us hear the Commissioner and at least one beautiful gesture which he said on the spot. ये एक छोटा सा था कि अगर कमिश्नर साहब ज्यादा फ्रीक्वेंटली आए यहाँ तो कितना अच्छा हो। Sir, now I request Mr. Mehra to say a few words. पहले मंडल साहब कि जितनी पार्किंग है, आधी से ज्यादा पार्किंग जो है वो ऐसे लोगों ने एक्वायर किया परमानेंट, जो कार डीलर्स हैं, उन्होंने हमेशा परमानेंट वहाँ पे शोरूम बने हुए हैं और कोई रेमेडी नहीं इसकी, लोगों को पार्किंग मिलती नहीं है। हमारी काउंसलर मंडल साहब, ये हमारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, माननीय जगदीश ममगई जी जो वक्फ कमेटी के चेयरमैन हैं, मेरे साथ निगम के सभी अधिकारीगण जो यहाँ आए हुए हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सभी मेंबरान, लाजपत नगर 1, लाजपत नगर 2, लाजपत नगर 3 नेबरहुड रेजिडेंट एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा? उसके कारण है जिस तरह से प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं और जिस तरह से खुद यहाँ के सिटीजन्स काम कर रहे हैं, इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और जैसे मैं भी आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा प्रोफेसर सेठी जो कि पढ़ाती हैं पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने अपने इनिशिएटिव से एक सुंदर गार्डन का विकास किया है। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है और मैं तो ये कहूँगा कि हम ऐसे सिटीजन्स को सैल्यूट करते हैं कि जो खुद अपने बल पे ये सब करने की कैपेसिटी रखते हैं। कितनी प्रॉब्लम्स आई होंगी, कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी होगी, उन्होंने ये करके दिखाया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। प्रॉब्लम्स इस कॉलोनी की, जैसा कि कहा गया है कि पॉश कॉलोनी है, लगती भी है और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसी नहीं है जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते और बहुत जल्दी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये सब
जो भी मेमोरेंडम मुझे मिले हैं और जो भी इनमें मुश्किलें या प्रॉब्लम्स हैं, मैं खुद उनको पढ़ के उनका एक टाइम बाउंड तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे। और मैं इस इलाके में करीब 6 महीने के बाद या उससे पहले फिर एक बार आऊँगा देखने के लिए कि हमने जो आज बोला यहाँ, आप मुझे खुद फेस टू फेस पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे आके बोल के गए थे, आपने क्या कहा। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो दिल्ली नगर निगम ने लिया है वो है कि हमने एक पेज स्टार्ट किया MCD का फेसबुक पे, शायद आप लोगों को उसकी जानकारी भी होगी। शुरुआत बहुत हमारी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ जुड़ी है कि हमारे जो कूड़ा घर है वो साफ हुए कि नहीं हुए, उसके बारे में हमने सभी डलाव को नंबरिंग कर दिया गया है। और सभी सिटीजन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो डलाव साफ नहीं हो रहे तो हमें फेसबुक पे उसके बारे में जानकारी दीजिए। उसका हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला पूरे दिल्ली के हमारे नागरिकों से, और मैं समझता हूँ हमने भी प्रयास किए। पहले बहुत बड़ी एक तरह की चैलेंज सा हो गया था हमारे लिए कि हमारे अधिकारी काफ़ी एप्रीहेंसिव थे कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई बात छुपी रहती है, लेकिन एक बार फेसबुक पे आ गए तो आप आमने सामने हो गए। तो मैंने सभी अधिकारियों को आश्वस्त किया कि हम तभी कामयाब होंगे जब हम सच्चाई का सामना करें। सच्चाई को जहाँ तक छुपाओगे वो हमेशा ऊपर आएगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इशू को समझें और देखें कि कहाँ कमी है। हो सकता है कि ग्राउंड पे वो काम उस तरह से नहीं हुआ हो, जैसा कि अभी बताया गया कि झुग्गियाँ हैं किसी इलाके में, जहाँ पे वो उठा देते हैं, उसके बाद में समझौता ये होता है कि भाई हम उठाएंगे, फ़ोटो ले लेंगे, रिपोर्ट चली जाएगी, उसके बाद में वो फिर आ जाएंगे। ये सही बात नहीं है और इसको मैंने नोट किया है और इसका हम सोच देखेंगे कि किस तरह से परमानेंट सोल्यूशन निकले। यहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है लाजपत नगर में, सभी का आना होता है करीब करीब, मैं भी बहुत आता रहता था पहले भी और अभी भी शायद कई बार आया हूँ। पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं आप सब यहाँ पर मौजूद सिटीजन्स को ये बताना चाहूँगा कि MCD ने इस तरह अभूतपूर्व काम किए। हमारे यहाँ कुछ ऐसी पार्किंग साइट्स थी जो अनऑथराइज चलती थी, वो दम भरते थे कि हमारे पास ऑथराइजेशन है, लेकिन ऑथराइजेशन होती नहीं थी। हमने काफ़ी अध्ययन करने के बाद में ऐसी अनऑथराइज पार्किंग को ढूंढा और पुलिस से NOC लेके उनको हम ऑथराइज तरीके से चलाने की अभी मंजूरी देने वाले हैं। वो अलग अलग स्टेजेस पे काम चल रहे हैं। यहाँ की जो प्रॉब्लम है लाजपत नगर की, खासकर सैटरडे और संडे को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे ख्याल में मार्केट में आने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, सभी गाड़ी में आते हैं, तो पार्किंग की जगह चाहिए सबको। तो इस तरफ हम स्पेशल ध्यान दे रहे हैं और जो यहाँ पर सेकेंड हैंड कार बेचते हैं या वो पार्क कर देते हैं, उसके लिए हम स्पेशल अभियान चलाएंगे और उनको ये यहाँ पर हम पार्क करने नहीं देंगे। कोशिश ये होगी कि जो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है पार्किंग की उसको हम मीट करें ताकि सिटीजन्स को कोई तकलीफ ना हो। रोड बनती है और ज़रूरत क्या होती है कि भाई गैस लाइन बिछनी है तो हमें रोड कटिंग परमिशन दी जाइए, वो देनी भी पड़ती है क्योंकि गैस पाइपलाइन गैस जो बिछ रही है उसके लिए कई बार बिजली की कंपनी है उनको रोड काटनी पड़ती है, किसी वजह से दिल्ली तक रोड के लिए कई बार परमिशन में देनी पड़ती है क्योंकि पानी सबसे पहले ज़रूरी है। ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ भी रोड काटा जाए उसको एक समयबद्ध तरीके से रिपेयर किया जाए। अब ये प्लान किया जा रहा है कि जितने भी पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं दिल्ली में उनके साथ में एक बैठक करने के बाद इसे तय किया जाए कि अभी आप बता दीजिए और एक समय जो निर्धारित किया जाएगा उसमें आपको जो रोड कटिंग करनी है वो कर लीजिए, उसके बाद में हम कोई भी रोड कटिंग आपको अलाउ नहीं करेंगे। खासकर मॉनसून के पीरियड में रोड कटिंग बिल्कुल भी हम अलाउ नहीं करते, बिल्कुल बैन हो जाता है। लेकिन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं पब्लिक यूटिलिटीज हैं उसके लिए हमें अलाउ करना पड़ता है और अब कोशिश ये की जा रही है जहाँ भी रोड कटिंग है, जहाँ भी किसी भी रूप में उनको हम एक समयबद्ध तरीके से पूरा करें।
यहाँ के मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी देखी वो थी कि यहाँ के जितने भी गार्डन्स हैं वो बहुत वेल मेंटेन हैं सभी। मैं काफ़ी सुबह 8:30 बजे से अब राउंड लगा रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं आप सबको और हमारे माननीय कौंसलर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इन सभी शहरियों के लिए ये खूबसूरत पार्क बनवाए, इसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी चाहिए, बुजुर्गों के लिए घूमने की जगह चाहिए, वो यहाँ हुई। एक चीज़ जो यहाँ मेरी नोटिस में लाएगी वो थी ड्रेनेज की प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में दूसरी कॉलोनीज में थी, एक बैकलेन्स में जो रोड्स हैं या रोड्स कॉलोनी की हैं वो टूटी हुई हैं। तो हमने ये सजेस्ट किया है काउंसलर साहब को कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दीजिए, क्योंकि एकदम तो हम ये सारे काम कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक समयबद्ध तरीके से एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के हम इस काम को करवाएंगे। ड्रेनेज भी इम्प्रूव होगी। आई थिंक उस तरफ की जो कॉलोनी है उनके लिए हमारी एक स्कीम दिल्ली सरकार गई हुई है, उसको हम एक्सपेडाइट करवाएंगे। क्लीनलीनेस की बात जहाँ तक है, हम सब जानते हैं कि डेली सफाई जब तक नहीं होगी तब तक कॉलोनी साफ नहीं रहेंगी। खासकर छुट्टी वाले दिन मैं समझता हूँ ये सोचते हैं कि भाई आपकी छुट्टी है तो छुट्टी दफ्तरों की है, सफाई की तो कोई छुट्टी नहीं है। इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है कि छुट्टी वाले दिन भी हम कुछ कर्मचारी एरियाज में लगाएं जिससे एरिया की सफाई हो। बाकी जितनी दूसरी जो पॉइंट्स उसमें लिखे गए हैं सभी मेमोरेंडम में, मैं सबको देख के उन पे एक एक्शन प्लान हम बनाएंगे और समयबद्ध तरीके से उसको लागू करेंगे। हमारे यहाँ के जो उपायुक्त हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो बहुत ही डायनेमिक है और मैं समझता हूँ वो इसको एक तरह का चैलेंज लेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करेंगे। चीफ इंजीनियर यहाँ के मिस्टर उमेश सचदेवा जो अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं, बहुत ही एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग और रिपोर्टेड चीफ इंजीनियर हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो आप कहोगे कि हमारी ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी, हमारी ये प्रॉब्लम भी खत्म होगी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए, चाय पीजिए और धन्यवाद। Mento for you, so that it reminds you that you have these pending jobs. Mr. Shri Mehra. थोड़ा सीधा कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए, बस सीधा दिखाइए। आप भी आइए। आइए जगदीश जी, आओ बस सामने सर, सामने। थैंक यू। जैसे चावड़ा कह रही थी फोटो मत खिंचाओ, काम कर। Mr. Mandal that I am likely to come out so and so day, इसी बदौलत हमें जो है यहाँ पे satisfied और पाकिस्तान overnight this entire Nagpur has been transformed. That's because there was a will please ask your office to make random calls. There has been a dramatic change for the last 2 years. We've been asking for lights, no funds. Contractor funded. आज आके देखिए, कल हमारे पास में दिवाली। Therefore, please continue an effort, at least to the councillor, that you are likely to. के ब्लॉक की बैकलेन में 1 साल की सफाई हुई है। 1 ब्लॉक की बैकलेन 1 साल के बाद अभी आज भी यहाँ पे सफाई हो रही थी, उसके ऊपर ये कपड़ा डाला गया है। सारे लाजपत नगर में आज सफाई हुई है क्योंकि आप आ रहे हैं। जन्नतें नहीं होती, नहीं, जब 40 आदमी है, जब 40 आदमी। उषा जी, मैंने जब सारी बातें रेज कर दी, अब कुछ रह गया बाकी बताइए आप। भाई साहब, सारी बातें कर दी, आप बैठिए प्लीज। नहीं, गलत बात है, बाकी आपने बुलाया, मुझे बोलने का हक है। आप बाद में प्राइवेट बात कर लो, कोई बात नहीं। मीटिंग है, आप मीटिंग हमारी, आप बैठिए प्लीज। नहीं, सॉरी, मीटिंग में होनी मैंने मैनेजर साहब को बोलना है। मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए, मुझे बोलने दीजिए। ये सफाई कर्मचारी यहाँ बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, लेकिन कभी भी इनसे पूछे, कोई बात नहीं, कुछ मैं पूछना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारी की ड्यूटी क्या बनती है? क्या डेली उन्होंने डेली एरिया में झाड़ू लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं? पहली बात ये है। जब हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं हमारा एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए हम हर रोज झाड़ू नहीं लगा सकते। 3 दिन के बाद एक जगह पर झाड़ू लगाने का उनको टाइम लगता है। आप ये बताइए उनकी ड्यूटी क्या बनती है? डेली झाड़ू लगा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है?
सुपरवाइजर जिम्मेवार है, सफाई कर्मचारी नहीं तो मैं नोट कर लेता हूँ और ये इंश्योर बिल्कुल झाड़ू कहीं पूरे एरिया में कहीं नहीं लगता। पूरा इंश्योर कर देंगे। हाँ, डेली रखना चाहिए, पूरा भी उठाना डेली चाहिए। रखना चाहिए, डेली लगेगा। आप इसको ये क्या मतलब ऐसे ठीक है मौका आयुक्त महोदय, मेरे छोटे भाई जिनकी चर्चा आप हर रोज अखबारों में टीवी में देखते हो, वर्ष कमेटी के चेयरमैन श्री जगदीश जी मुंगई, और विकास में ही आनंद लेने वाले हमारे नए डिप्टी कमिश्नर श्री विकास आनंद जी, उमेश जी चीफ इंजीनियर, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रमन जी, हमारे साथियों, भाइयों और बहनों, बहुत कुछ कहा जा चुका है, सुन भी लिया और मेमो भी देख लिया। मैं केवल उसकी आवृत्ति नहीं करूँगा, इतना कुछ बातों के ऊपर मोहर लगा करके आपकी स्वीकृति जरूर चाहूँगा। कमिश्नर साहब ने पूरा दौरा किया अमर कॉलोनी का, मैं गाड़ी नहीं ले जा पाया, टाइम फैक्टर था। उसके बाद जहाँ पर आपके असरार से खास करके अपने जनरल सेक्रेटरी के कहने पर, अनुरोध पर, मैंने कहा कि आपने यहाँ पर मुझे दुख कर रहा है या अमर कॉलोनी से सीधे जा रहा है। अच्छा लगा, कुछ लोग भी हुई, शायद मोहब्बत का दूसरा स्वरूप। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जितना इस एसोसिएशन के प्रति मेरा विश्वास है, आस्था है और उनके मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए मैं मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, शायद और ज़्यादा नहीं हो पाता। क्यों? महज इसलिए कि ये एसोसिएशन एक जागरूक एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन मुझे कोऑपरेट करती है, ये एसोसिएशन कंस्ट्रक्टिव काम करती है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे फुल प्रूफ काम होगा नामुमकिन है। मेरी एक बहन ने कहा वहाँ से क्या हम 70 ट्रक मलबे के नहीं उठाए, 70 ट्रक उठाए मलबे, कम से कम ज़्यादा हो गई, कम नहीं हो गए। लेकिन जब कोई कंस्ट्रक्शन होती है, बालवा का एक 10 मिल बन जाता है, बालवा बहुत बड़ा डाल जाते हैं, हम उसको क्यों लिखते हैं? हमारा क्या फ़ायदा होता है? हमारा भी कोई फ़ायदा है, हम उसको भी देखें, उसको भी जानें, हम उसको भी रोकें। जब हम कहते उसका चालान कर दें तो आप, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको वहाँ से कोई भी है तो इंडिविजुअल कहते हैं कि मेरा चालान को कर दिया। हमारा वर्क डिपार्टमेंट जागरूक है, मलबा उठाता है, कूड़ा उठाता है, सफाई कर्मचारी जागरूक है। और जहाँ तक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात है, मैं मिसेस सपरा का नाम लेना चाहूँगा, इन्होंने अपने घर के सामने पार्क को जिस खूबसूरती से डेवलप किया है, मैं ऐड कर रहा हूँ, इन्होंने भी और उनके सहयोगियों ने एक आदर्श नमूना पेश किया है। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने स्वयं इतनी रुचि लेकर के इतनी सुंदरता से पार्क को डेवलप किया है कि शायद हम नहीं कर सकते। शायद एक घर का नमूना है। मैं चाहता था कि कमिश्नर साहब वहाँ पर जाते हैं, वो भी देखते और इनको भी वादा करते, जैसे कि मिसेस शेट्टी की बात आती है। यहाँ पर मैं एक पार्क की बात करूँ, अनेकों पार्क है, रवि सिंह हमारे डायरेक्टर है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ये कहें कि फूलपुर हो गए बस 29 पार्क है, सब कुछ यही हो, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन काफ़ी कुछ यही हो, ये मुमकिन है, अब हो रहा है। सफाई की बात है, उसमें कोई शक्ति हमारी लिमिटेशन है, सफाई का काम चलता है, एक डेली रूटीन है। थोड़े देर हुआ है, टेक ओवर किया, आते ही इन्होंने बहुत ही बोझ पड़ता है काउंसिल के ऊपर, बहुत ही बोझ पड़ता है लोगों के ऊपर जो अफेक्ट होते हैं। लेकिन मैं अब भी विकास आपको कहना चाहता हूँ, ये step it was a welcome step by most of the people, and the time will come when they will appreciate कि whatever has been done, it has been done with the good of them। ये मैं आपको नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं साथ में चाहता हूँ कि जैसे भी हो सके इसको डेवलप कर दें, ताकि लोगों को, आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, दिक्कत ना हो। जिस तरह से वो सोच में खड़ी भी है, वो कमर्शियल लैंड है, कमर्शियल लैंड है। अगर वहाँ पर डेवलप हो जाएगी, और जैसे कि कमिश्नर साहब ने वादा किया है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें वादा कराया है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले लोग याद करेंगे कि जो स्टेप हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जो कुछ कर्जे फूल भरने पड़ते हैं, कर्जे फूल भरने पड़ते हैं, और उसको सहयोग दीजिए, सहयोग काम दीजिए, ये हमारा मॉडल है। हम समाज में इसलिए उतरते हैं कि हमने कुछ करना और करके दिखलाते हैं, हमारा विश्वास नहीं होता, लेकिन आनंद आता है। जैसे विकास जी को विकास करने में आनंद आएगा, वैसे हमें भी अपने इलाके को सुख सुखी देखने के लिए, इलाके को साफ सुथरा देखने के लिए हमें और मजा आएगा।
मैं उन्होंने इतनी देर इंतजार की, काफ़ी टाइम लग गया, साहब ने भी जाना है क्योंकि और भी अपॉइंटमेंट है, और उन्होंने जो टाइम दिया रियली मैं बहुत 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 मशहूर हूँ। तो एक बार फिर मैं आगे भी मुद्दे के प्रति अपने आभार प्रकट करता हुआ और अब सबके प्रति नमन करता हुआ ये विश्वास रहता है कि छोटे छोटे बात के कनेक्शन हुए। और मैं आपको फिर यही करा दूँ कि जब भी कभी बात होती है मैं हरविंदर जी को टेलीफोन पहले करता हूँ, 8 बजे को सिक्योरिटी बनाते हैं, सिक्योरिटी बनाते हैं कि हरविंदर जी मेरे पास लाइट आ गई, वो चाहिए नहीं चाहिए। Unauthorized encroachments are being removed. When the sealing took place, it was wonderful for many. Some felt the heat of it, but for the residents, it was wonderful. Those offices are again coming back, those shops are again coming back. If the MCD remains strict, I think the life would be much better and easier. Now I would request our senior member of the executive, Mr. C.S. Malhotra, to propose a vote of thanks and say a few words. Deva Sahab, Mehra Sahab, we are very, very thankful to you for this trip. It has been a blessing because overnight the corporation officials woke up from their slumber and started cleaning the area. Absolutely right. As you rightly said, and we very much appreciate that you will make frequent visits. We will be very, very thankful to you, sir. If you come, at least some of the problems the corporation people will definitely attend by your mere presence. Want to do and have a time-bound schedule to sort out those issues. My only hope is that like many promises which have been galore from our councillors and from our other member political leaders, this will not be another promise which will go unfulfilled. I fully hope that as a very dynamic and senior official, you will attend to these problems and have them sorted out. I wish to say that there are so many, I personally in fact spoke to both our MLA and our MLC about the potholes in the roads. The roads are so messy and all those things are so badly dug up. Nobody has been taking any attention or paying any attention to set them right. Drains have come up and in those drains the covers are missing. They are full with dirt and they have become a breeding ground of all those mosquitoes. My request is these things must be attended. I must say that Mandali has been making all his effort, but results have not been commensurate with our expectations. We want the results, we don't want promises. Kindly see that whatever our problems are, they are sorted. We are once again very, very thankful to you. We appreciate your gesture. We are honored to have you here today, and we will be more honored to visit us again. All of you are invited for breakfast. Sapna. इधर तक खेलते रहते हैं जिससे कोई ना कोई नहीं आप Gracias.
एक गरम पूरी सर, ये भी ले ले। Very आशीष 2 मिनट। आशीष जगदीश जी जाओ ना। अरे आओ, आइए सर, आइए। आपके बगैर कैसे चलेगा? आपके बगैर थोड़ा विकास जी को आगे आप जवन से थोड़ा आगे आओ। बस बस हरिंदर जी आप भी साथ ना चलो, बस सामने देखिएगा। थैंक यू सर, वेरी काइंड। मैंने 2 मीटिंग पोस्टपोन कर दिया। So nice. So nice of you, sir. I'm grateful to you. Thank you.